بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ وتھ فرا میں. دعا میں یہی آپ جہاں کہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, کے ساتھ بھی سبھی ہو. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا اور آج کل کی بات آپ لے لیجیے, ہماری اپنی نیشنل اسمبلی میں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے اس چیز کی بہت پرزور مذمت کی کہ جس طرح سے گستاخانہ اٹیمپٹس مسلسل کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں, اور جس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ آزادی رائے کو ایک بہانہ بنا کر, ایک جواز بنا کر گستاخی کی جاتی ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی جو اٹیمپٹ ہے جس میں وہ کامیاب بھی رہتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہر ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے, اور کوئی بھی انسان جو کسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے لیے بہت اہم ہے, اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جن کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ایمان کا ایک بنیادی حصہ اور جزو ہے. تو ان کے جذبات کو اتنی ٹھیس پہنچانے کی اٹیمپٹ کرنا اور اس کے لیے ایک ایسا جواز اور بہانہ تلاش کرنا کہ جو آزادی رائے جو ہے اس کی ایک لمیٹیشن اور اس کا ایک جو دائرہ کار ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں. تو اس کو ایک جواز کے طور پر, ایک دلیل کے طور پر, ایک بہانے کے طور پر استعمال کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے, اور ہر بھی انسان جو ہے بھلے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہوگا اسے اس طرح کی اٹیمپٹس کی اور اس طرح کی کارروائیوں کی مذمت کرنی چاہیے, اور وہ کرے گا بھی. لیکن اس بارے میں اگر ہم اپنے مذہب کی طرف پلٹیں تو ہمیں اپنے قرآن حکیم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے, حیات طیبہ سے چند باتیں جو ہیں وہ بہت کلیئر پتہ چلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء کی طرح اپنی پوری زندگی میں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا. قرآن حکیم میں جا بجا آپ کی دلجوئی کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ان باتوں پہ غمگین نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو. کچھ جگہوں پہ وعید دی گئی ہے کہ آپ بھی انتظار کیجئے, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے, پریشان کرتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, جہاں سے آپ گزرتے تھے وہاں پر آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ طائف کے سفر پہ جب آپ گئے ہیں دعوت حق کی تبلیغ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے, اتنا کہ جس میں مبارک جو ہے وہ چھلنی ہو گیا, اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا, اتنا خون کہ وہ آپ کے پاؤں کے جو جوتے ہیں وہ اس خون سے بھر گئے. کیا تکلیف تھی جو کہ آپ نے نہیں اٹھائی تھی, حتیٰ کہ انہیں ایک چھوٹی سی وادی میں سمٹنا پڑا, وہ آپ کو مکمل بائیکاٹ کیا گیا. ہر طرح کے الفاظ, ہر طرح کے القابات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے, لیکن آپ کے جو پائے استقلال تھا اس میں کوئی لغزش نہیں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک نرمی کے ساتھ اور ایک خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچایا, اس لیے کہ وہ تو احمد ہے, وہ تو محمد ہے, وہ تو حامد ہے, ایک ایسا شخص جس کی تعریف کی گئی ہمیشہ سے اور جس کی ہمیشہ تک تعریف کی جائے گی. تو جتنی بھی اٹیمپٹس اس طرح کی جائیں وہ ہمیشہ بیکار رہتی ہیں, ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اگر ہم قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہمیں تذکرے ملتے ہیں جا بجا پیغمبروں کے, اور سورۃ الانبیاء میں جہاں پر کہ مختلف پیغمبروں کی حیات کا, ان کی زندگی کا ذکر ہے, تو اگر اس زندگی کو ہم غور سے پڑھیں تو کون سے نبی ایسے تھے جن کی تکذیب نہیں کی گئی, جن کا تمسخر نہیں اڑایا گیا, جن کے بارے میں فکرے نہیں کسے گئے جملے اگر ہم پڑھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو جس طرح سے تنگ کیا گیا تھا, دیوانہ کہتے تھے آپ کو, پتھر مارتے تھے آپ کو, اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کی بد دعا کے نتیجے میں تو طوفان آیا تھا. اور اگر موسیٰ کی اٹھا کے دیکھ لے تو جادوگر نہیں کہا گیا آپ کو, اور آپ کی تکذیب کے لیے مختلف اور حربے اور مختلف طریقے اختیار بھی کیے گئے. اور اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے تو اپنی طرف سے اللہ کے جو رسول ہیں ان کو سولی پہ چڑھا دیا تھا. تو یہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہ رویہ جو ہے یہ تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہو, یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج تک زیادہ جو ہے زبان درازی کرنی ہو اور گستاخی کرنی ہو, یہ وہ رویہ ہے جو فطرت انسانی میں شامل رہا ہے ان لوگوں کی جو کہ ہمیشہ سے شرارتی رہے ہیں. اور ان کے بارے میں سورۃ الاعراف میں 6 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے, وہ ملاؤں ہے. یہ وہ لفظ ہے جس کے ساتھ قرآن حکیم ان کو یاد کرتا ہے, اور پھر اس کے بارے میں ہمیں بتایا بھی گیا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سختی سے نمٹنا ہے, اور جب یہ آزمائیں گے اس چیز کو کہ مسلمانوں میں ابھی بھی اتنا جوش و جذبہ باقی ہے, بھلے وہ زائنسٹ ڈیزائن ہو, وہ جو کہ پورا ایک پروپیگنڈا, ایک پروگرام ہو جس میں مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جائے, انہیں اکسایا جائے, ان کو بلایا جائے, ترغیب دی جائے کہ وہ کسی نہ کسی ایسے ریئیکشن پہ آئیں جس کو پھر استعمال کر سکیں اپنی پوری دنیا میں شو کرنے کے لیے کہ مسلمان جو ہے بہت جذباتی ہیں, بہت زیادہ ریئیکشنری ہیں, یا وائلنس کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود
वैसे मुसलमान के जब जब इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हरबे किसी भी बहाने के साथ इस तरह का कोई मौका या जवाब तलाश करके इस तरह की अटेम्प्ट की जाएगी, तब तक जज्बा ईमानी से भरपूर और सरशार हर एक मुसलमान जो है इससे इसी तरह से रिएक्ट करता चलाएगा। तो अगर इस मामले को दुनिया में रोकने की जरूरत है तो हमेशा जिसे कहते हैं ना कि जो भी उसका स्टिमुलस है, जो उसका बेसिक चीज है, उसको रोकने की जरूरत होती है, और उसके बाद अगर उसको ना रोका जा सके तो रिएक्शन को रोकना कभी भी मुमकिन और कभी भी मुमकिन हो नहीं सका। तो अल्लाह करे कि एक तो ये कि हमारी जिंदगी में इंसानों को समझ आए कि इस तरह की हरकतों से और कार्रवाइयों से बाज रहे। लोगों के जज्बात जो है मजहब के साथ बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, उस पर ना कर सके, और हम लोग भी अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ टायर जलाएं, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एहतजाज करें। आजकल बहुत सारे एहतजाज के डिसेंट और मुनासिब और माकूल जराए मौजूद हैं, फेसबुक है, इंटरनेट की और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सोशल मीडिया पे यूज कर रहे होते हैं, जो ट्विटर्स हैं, जहाँ पर हम पूरी दुनिया को एक पढ़े लिखे अंदाज में भी ये पैगाम दे सकते हैं कि आपने जो कुछ किया है, जिस तरह से ये किया जा रहा है, वो मुनासिब नहीं है, वो महज़ब नहीं है, वो ज़ेब नहीं देता इंसानों को, अक़वाम को, अफराद को, कि वो इस तरह से एक दूसरे के जज्बात को इश्तियाल दिलाएं और एक दूसरे को इस तरह से तकलीफ का अज़ियत दें। उसके साथ साथ जिस तरह से भी हो, हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम ज़रूर देना है कि आप हमें मज़हब के बारे में इतनी ज़्यादा कंसर्न नहीं है, और अगर आप इन बातों पर इतने दिलगिरफ्तार परेशान नहीं होते तो ज़रूरी नहीं कि मुसलमान भी उसी तरह से उन चीज़ों पर रिएक्ट करें। हम जो है ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत पूरी दुनिया को भी है कि मुसलमान कौम जो है बाकी अक़वाम से बहुत सारे मामलात में फ़र्क है। सो अल्लाह करे कि इस तरह की चीज़ों का सिलसिला रुक सके। और आज का जो प्रोग्राम है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो ये कि आज जो मैंने टॉपिक रखा है ना, उसमें एक्सपर्ट जो मेरे साथ है उन्होंने PhD किया हुआ है इसी एक मौजू के ऊपर, और वो मौजू हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में और ख़ासतौर पर अपने माशरे में कभी कभी न्यूज़ बुलेटिन में देख रहे होते हैं। गैरत ये एक ऐसा सिंबल है, ये एक ऐसी चीज़ है अना कि जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और ख़ासतौर पर ख़वातीन के खिलाफ तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना। हमें लगता है कि खातून के साथ तो कोई गैरत का मामला जुड़ा ही वही है, उसके भाई का, उसके बाप का, फिर उसके शौहर का, और फिर ख़ानदान के दूसरे जो मर्द हैं वो सब उसके ऊपर जो अपना हिस्सा क्लेम करते हैं या अपना उसके ऊपर हक क्लेम करते हैं, तो उसके साथ गैरत का आंसर जो है बहुत ज़्यादा होता है। हमने इसमें सिर्फ एक चीज़ पर बात करनी है, वो ये है कि इस्लाम जो है वो हक देता है किसी भी इंसान की तरह औरत को भी कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके, अपनी मर्जी के साथ ज़िंदगी के कुछ मामला का तयन कर सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम हिंदू परस्त माशरे में इस तरह के हकूक़ देने की आज तक रिवायत कायम नहीं हुई है, और हमने हिंदू जो हमारी जहनीत है या फिर हिंदू माशरे की जो हमारे पर छाप है उसके ज़ेर तहत औरत को आज तक पाँव की जूती समझते हुए, अपनी मिल्कियत समझते हुए ट्रीट किया गया है, और इस्लाम के दिए हुए हकूक़ भी देने से उन्हें परहेज़ किया है। तो आज हम इस बारे में बहुत प्रिसाइज बात करेंगे कि क्या वाकई गैरत का तस्वुर कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम से जुड़ा हुआ है, इस्लाम कितना के सब बारे में इजाज़त देता है, और कहाँ पर ये बातें जो हैं ये इस्लाम की रूह से और उसकी बुनियादी तालीमात से मुतसादिस हैं। तो ये आज गुफ्तगू का जो सिलसिला है डॉक्टर मुनीर के साथ होगा, जो कि PhD स्कॉलर हैं, और उनकी PhD ही जैसे मैंने आपको बताया है इस एक टॉपिक के ऊपर है, गैरत के नाम पे कत्ल। उसके साथ साथ आज हम शो में आपको बुलवाएंगे हकीम मेज़बान हफीज़ मलिक साहब के साथ, और आपको पता है सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में कुछ खुराक ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी मतलब रिवायात में हुआ करती थी। पंजीरी एक ऐसी चीज़ थी जो कि अक्सर घरों में बना करती थी। तलत आपको पंजीरी बनाना बताएंगी यहाँ पर, और हकीम मेज़बान हमें उस पर डलने वाली मुख्तलिफ जो चीज़ें उनके ख्वास और अफादियत बताएंगी कि वो किस तरह से इफेक्टिव है और क्यों उनको खाना चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा था कि 5 सुपर डाइट्स, 5 ऐसी हिकमत की चीज़ें हमारे साथ शेयर करें जो हर खातून की डाइट में शामिल होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती, अपनी फिटनेस जो है उसको छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही आसानी के साथ मैनेज कर सके। इसके अलावा आज मैं आपकी मुलाकात 2 राइटर्स से करवाऊंगी। एक मेरे राइटर जो हैं उन्होंने लिखी है मिजाह की कुछ किताबें, पढ़ाते भी हैं, उसके साथ साथ उनसे गपशप मुलाकात होगी, और एक सफरनामा के राइटर हैं। इन दोनों से मुलाकात जो है आज शो का हिस्सा है। जुल्फ़ार अली अहसन साहब जो है मिजाह निगार हैं, और हुस्नैन नाज़िर साहब जो हैं ये अदीब हैं, सफरनामा निगार हैं, अफसाना निगार हैं। हमने कोशिश की है कि हम अपने अदीबों को, राइटर्स को नहीं चलता, इसलिए कि हम आजकल ज़्यादा फिल्म देखने के शौकीन हैं, रेस्टोरेंट्स पर जाके खाना खाने के शौकीन हैं, किताबें पढ़ने में कोई इतनी ज़्यादा हम दिलचस्पी नहीं लेते जैसे दूसरे अक़वाम में होता है कि बेस्ट सेलिंग किताब कोई हुई है। बहुत कम है कि हमारे यहाँ पर अपनी लिखी हुई कोई किताब जो है वो बेस्ट सेलर हुई हो। सो अल्लाह करे कि हम लिखने पढ़ने की तरफ भी अपना जो ध्यान और रुझान जो है वो बरकरार रखें। सो आज जो हम आपकी मुलाकात राइटर्स से भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शबनम, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ। आपको पता है अभी मैं बोल रही थी मुसलसल, और मेरे लिए बोलना इतना मुश्किल हुआ था क्योंकि मेरी टीम मुसलसल मेरे एयरपीस में साथ साथ की जा रही है, शबनम की कॉल है, शबनम की कॉल है। बिल्कुल, मैं हॉल पे भी रहती, बहुत खूबसूरत आप गुफ्तगू कर रही थी, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही थी, तो उसको तो सुनने के लिए चाहे काफी इंतजार भी करना पड़े। नहीं, मैं गुफ्तगू नहीं कर रही थी, मैं अपने जज्बात का इजहार कर रही थी एक मुसलमान के तौर पर कि हम सब मजम्मत करते हैं ऐसी तमाम कार्रवाइयों की, और हमेशा करते रहेंगे। जितनी दफ़ा आप ये अटेम्प्ट करेंगे उतनी दफ़ा हम इसकी मजम्मत करेंगे, और इसकी मजम्मत में हमें जो कुछ भी करना पड़ा हमें करना चाहिए, और हमें दिल से करना चाहिए। आपके जज्बात अंदर से दिल से निकल रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए। जी शबनम, और कुछ कहना चाह रही हैं? आज शो में हमने बहुत सारी चीज़ें लाइन अप की हुई हैं। जी, आपके शो में बहुत चेंजिंग आई है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, और सबसे अच्छी चेंजिंग मुझे आपके ये इन बालों में लग रही है, आपके बाल बहुत खूबसूरत हो गए हैं। यार ये मुझे मुसलसल कमेंट्स मिल रहे हैं, बाल खूबसूरत हो गए हैं, आप खूबसूरत हो गई, थैंक यू सो मच। मुझे जी कुछ राज हमसे भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, जवानी हमारी भी बरकरार रहे इसी तरह से, हम भी इसी तरह से सुनहरे बालों रंग रूप डाई कर रहे हैं। मैं आपके डाई का कलर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने लॉरियल का नंबर जो है 6 और 7 वो मिक्स किया हुआ है, 6.36 और 7, तो वो कलर शेड आपको शायद मिल रहा है। इसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं है कि चेंज हो। बाकी चीजें मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरा शो देखते हैं तो इसमें जो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ तो सब कुछ वो है जो मैं अपनी जिंदगी में भी इसको कर रही हूँ, क्योंकि दिस शो इज माई लाइफ। जबरदस्त, ठीक है, और मेरे ख्याल में यही खूबसूरती का राज है आपका। थैंक यू सो मच। नहीं, राज तो कोई भी नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। जो कुछ आपको मैं खुद बता रही होती हूँ वो सब मैं अपनी जिंदगी में खुद भी प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, ट्राई कर रही हूँ। जबरदस्त। थैंक यू शबनम, आप साथ रहिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जनाब ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी सबसे पहले हकीम रिजवान साहब से, फिर तलत की रेसिपी शेयर करेंगी, और उसके बाद प्रोग्राम के बाकी हिस्सों में मुख्तलिफ हमारे मेहमान जो है वो आपसे मिलते रहेंगे। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमानों से। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है, हम पहले आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने आज के अदीबों से जिन्होंने कि मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं। और जुल्फ़िकार अली हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मज़ाह निगार हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अटखेलियाँ, छेड़छाड़ और चुटकियाँ जी, चुटकियाँ या चुटकलियाँ? नहीं, चुटकियाँ। अच्छा, किसको चुटकियाँ गाते हैं आप? मुख्तलिफ लोगों को। ऐसे मीडिया के बारे में भी, हाँ मीडिया के बारे में भी खासा कुछ लिखा है। तो ये आपकी तसनीफ है, और उनके साथ हसनैन नाज़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हूँ। आपने लिखे हैं मुख्तलिफ सफरनामे और अफसाना निगार भी हैं आप। इसके अलावा भी कोई और कभी शायरी, कभी और किसी सनफ में भी तब आजमाई की है? कभी शायरी कभी कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा किताब लिखने का ख्याल कैसे आया जहन में? कि मज़ाह तो सारे थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, और आजकल मज़ाह जो है वो जुमलों की हद तक महदूद है कि अच्छा जुमला लगा लिया, कह लिया, लिखा नहीं जाता। असल में ये है कि मैं उर्दू की तरफ जो है ना शौक के तहत यानी अक्सर लोग जो है वो उर्दू की तरफ हादसाती तौर पे आते हैं, मजबूरी में आते हैं, या मजबूरी में, या दाखिला नहीं मिलता है कहते चलिए उर्दू में आगे कर लेते हैं। तो लेकिन मैं शौक के तहत, प्लान के तहत आया। मेरे वालिद साहब भी उर्दू के प्रोफेसर थे। अच्छा, तो एक शौक किताबों का घर में, और ये कुदरती तौर पे एक चीज़ जो है ये मज़ाक की कुदरत ने शायद मुझे अता की है। सही। तो मुझे इसका इदराक कुछ हुआ तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। किस उम्र में शुरू किया था? ये मैंने FA में था उस वक्त जब मैंने कुछ लिखना शुरू किया। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे असातिज़ा ने बड़ी रहनुमाई की, और फिर मेरी पहली बुक अटकेलियाँ जो है वो उस दौर में आई थी जब आप अभी खुद तालिब इल्म थे? जी, और MA के स्टूडेंट थे? MA का स्टूडेंट था। अच्छा, तो कैसा लगता है मतलब साहिब किताब होना जबकि आप खुद तालिब इल्म हो अभी? तो यूनिवर्सिटी में और कैंपस में बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, बल्कि मैंने वहाँ पे मज़ामीन लिखे यूनिवर्सिटी में भी, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और बल्कि मेरी पहली जो बुक आई थी उसमें मैंने लिखा था वो उसका दिबाचा जो है ना, तो उसमें मैंने ये लिखा कि यूनुस भट्ट साहब की तो दर्जन भर किताबें आ चुकी थी। तो तबीयत में आपने जो गुफ्तगी के हवाले से पूछा, तो इस हवाले से मैंने लिखा कि यूनुस भट्ट साहब को इस लिहाज
لحاظ سے میں پسند کرتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی ان کے ہاں بھی میرے فن کی جھلک مل جاتی ہے. اچھا. تو ایک ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ طبیعت کے اندر شامل حالانکہ ہے. سب سے رواں دواں اس وقت جو مزاح نگار ہے میرا خیال وہی ہے جو سب سے زیادہ ان کی تصانیف جو ہے ہمیں دیکھنے کو. لیکن اب کچھ رپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں. اب یہ ہے ویسے وہ اچھا جملہ لکھتے ہیں. صحیح. اچھا مزاح نگاری میں آپ کے خیال میں کیا ہم ہے, اچھا جملہ یا پھر خاص نہیں ہم کہہ سکتے, اس میں کریکٹرز بھی آ جاتے ہیں, اچھے جملے بھی آ جاتے ہیں, جدت بھی آ جاتی ہے, لیکن جدت بھی ایک سلجھی ہوئی ہو تو اس والے سے کریکٹرز ہیں, تحریف ہے, اس کے اندر پیروڈی آ جاتی ہے, مختلف حربے ہیں. اور آپ کس میں زیادہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں؟ میں ساری چیزیں ہیں, خاص نہیں, کریکٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کا کچھ جو پیس ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. آپ کی کتاب میں سے کچھ اقتباس جو ہے وہ انہیں پڑھ کے بھی سنائیں گے. اچھا جناب, آپ کا سفر نامہ ترکی کا, جی کیا نام اس کا؟ کاردش نام ہے اس کا. کاردش. اور اس کا مطلب کیا ہوا کاردش کا؟ کاردش کا جو معنی ہے وہ ہے بھائی. اچھا. تو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی سگا بھائی یا حقیقی بھائی ہے. ان ترک یہ لفظ خاص طور پر پاکستانی میں استعمال کرتے ہیں. اور جب میں اس کتاب کا نام جب میں دینا چاہا, میں سے ساتھیوں سے پوچھا, اپنے ساتھیوں سے پوچھا, ان سے رائے لی لینا بھی تھی, لیکن ترکی میں میرے ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہوئے جہاں یہ لفظ بار بار میرے لیے, آپ کے لیے اور ہماری پوری قوم کے لیے استعمال کیے گئے. میں جیسے گرین بازار ہے ترکی میں, استنبول میں اتنا مشہور ہے, جیسے خلیل بازار ہے مصر کا, کہتے ہیں دنیا جہان کی سب چیزیں مل جاتی ہیں, اسی طریقے سے گرین بازار ہے استنبول میں, صوفیہ کے بالکل سامنے کر کے. میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک بڑی سی ایک مٹھائیوں کی دکان تھی. ایک صاحب باہر آئے وہاں سے, وہ سمجھے کہ شاید عربی ہے, تو عربی اس نے کہا, میں نے بلکہ ترکی میں کہا کہ میں پاکستان سے پاکستان کاردش, یہ دو انگلیاں جوڑتے ہیں, ساتھ کرتے ہیں کہ پاکستانی اور جو ترک لوگ ہیں وہ ایسے جیسے دو انگلیاں ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور ہمارا اور آپ کا حقیقی رشتہ ہے. تو ایسے ہی میرے ساتھ بغلگیر ہوا کہ جیسے میں اس کا کوئی بچھڑا ہوا بھائی ہو, یقین مانو دکان کے اندر لے گئے. ابھی عوامی ایک سوچ ہے, رویہ ہے جو کہ وہاں پہ پایا جاتا ہے, تو سمجھے تھے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جذبات کچھ کم ٹھنڈے پڑ گئے, کچھ معدوم ہو گئے. نہیں ایسا نہیں فرح, بلکہ اس قدر وہاں محبت ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے. اس کتاب میں خیر جگہ جگہ اور ہر ایک باب میں ایسے بہت سے آپ کو باتیں نظر آئیں گی, ملیں گی. اقبال کے حوالے سے اقبال شناسی اس قدر زیادہ ہے, لوگ اقبال کو جانتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اقبال کو لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہاں پر, اس لیے کہ ان کا جو فارسی میں کلام ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی اقوام جو ہے وہ زیادہ ان سے مانوس اور رغبت رکھتی ہے. اور حقیقت یہ ہے بلکہ وہ ترک جو قوم ہے وہ فارسی نہیں جانتے, وہ ترک بولتے ہیں, لیکن وہاں دو فارسی دانوں کی بہت قدر ہے. ایک مولانا جلال الدین رومی کی, کونیا میں جو وہاں آئے اور مثنوی انہوں نے جو اپنے شعرا فاق وہاں لکھی, وہاں رہے, اور ساتھ ہی مولانا رومی کے مزار کے ساتھ ہی ہاتھے میں ایک قبر انہوں نے تمثیلی قبر بنائی ہے علامہ اقبال کی بھی. اچھا. اور اس پہ لکھا ہوا ہے جی کہ یہ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں اور یہ علامہ جلال الدین رومی کے جو ہے وہ شاگرد ہیں. تو جیسے علامہ اقبال جو ہے ہاں روحانی شاگرد رہے رومی کے, تو پھر اسی طرح سے اسی مناسبت سے انہوں نے اس کو اس سلسلے کو اور نسبت کو برقرار رکھا. بالکل اس کا کہا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں استنبول میں میری ملاقات پچھلے دوست سے ہوگی پروفیسر سہیل عزیز صاحب کے ساتھ, جو وہاں کسی کورس کے لیے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے ہر طریقے سے ایک بات بتائی جس کا میں نے تذکرہ بھی یہاں کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے 14 لوگ تھے, لڑکیاں لڑکے, مرد زن کہنا چاہیے, لڑکیاں لڑکے شامل تھے کہ کورس میں. تو ان کی جو ٹیچر تھی اس نے ان کو کہا کہ آپ 5 لوگوں کے نام لکھیں, 14 لوگ جو پیغمبر ہونا ہے, سب سے اعلیٰ ہستیاں آپ سمجھے جو لیکن پیغمبر نہ ہو. تو ان سارے نے الگ الگ 5 لوگوں کے نام لکھے. پھر انہوں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ آپ سارے جو لوگ ہیں وہ 70 لوگ بنتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ سمندر میں جا رہے ہیں, کشتی میں, تو آپ ان تین دن کو گرا دیجیے, ان 3 نام کم کر دیجیے, 2 نام دے دیجیے.
سب نے 2 نام دے دیے. پھر کہا کہ آپ ایک نام دے دیجیے. سب نے پھر ایک نام دے دیا. تو انہوں نے پرچی اپنے پاس رکھ لی. پھر کہا کہ اچھا ایسے کیجیے کہ 2 آپ لوگ ساتھی ہو جائیں اور ایک نام دے دیجیے. پھر وہ 7 جو لوگ تھے 2 کے گروہ میں آئے اور 7 نام انہوں نے دے دیے. پھر کہا صاحب ایسے کیجیے کہ آپ 3 لوگ اکٹھے ہوں اور ایک نام دیجیے. پھر یہ کہا کہ سارے لوگ اکٹھے ایک نام دیجیے. تو وہ پروفیسر حیران رہ گئی کہ 70 کے 70 پرچیوں پہ ایک ہی نام تھا, علامہ محمد اقبال. اور مختلف کوئی ترکمانستان سے آئے ہوئے تھے, پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور 14 مختلف نیشنز کے لوگ تھے وہاں. سب کے سب کا جو نام تھا میری اقبال شناسی جو ہے اب مفقود ہوتی جا رہی ہے. پہلے تو پھر ہمارے نصاب کی وجہ سے کچھ ہمیں اقبال کی نظمیں باتیں یاد ہوتی تھی. اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ علامہ محمد اقبال جو ہے وہ کیا, ان کا شاہین کا کانسیپٹ کیا ہے, ان کا خودی کا کانسیپٹ کیا ہے نا. ہمیں تو آپ کے مجھے لکھا ہوا یاد آ گیا کہ اقبال کے شاہین کے بجائے ہم کس کو دیکھتے ہیں, سر شاہین کو. اور بھی اسی راز میں سوال آپ نے بہت ساری باتیں. ویسے فنکار جو ہے وہ آج کل اقبال شناسوں میں بھی زیادہ تر فنکار ہی ہیں. ہاں جی بالکل. تو بہت اس میں بہت خوبصورت اس طرح کی کچھ باتیں ہیں نا جڑی ہوئی ہیں جہاں پر انہوں نے میڈیا کا, لیکن میڈیا کے اوپر آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں لکھ دیا. اصل میں موضوع سامنے کا ہے ذرا, اور جو نظر آتا ہے صاف ظاہر وہ اس پہ کچھ خامہ فرسائی کی لکھا جاتا ہے. اچھا, بینگ اردو کے پروفیسر ہونا, اردو کا استاد ہونا, یہ کتنا آپ کو اس نے مدد دی ہے زبان دانی, کیونکہ آپ کی اچھی صاف آپ نے اردو میں لکھا ہوا ہے. اس میں بہت زیادہ مجھے فائدہ اس کا ہوا ہے, ایک ان ٹچ رہنا سبجیکٹ کے ساتھ, تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا ہے. سازارہ بکس پڑھنی پڑتی ہیں, لیکچر تیار کرنا پڑتا ہے, اس حوالے سے ویکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے. تو یہ سازارہ اس کا بہت زیادہ فائدہ اس کا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ اردو زبان کی وہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ نئی نسل میں اردو زبان کا وہ ہے تھوڑا زبان دانی کا جو ہوتا ہے طریقہ, تو انہیں واقفیت ہے زبان سے؟ جی ہے واقفیت. اب دوبارہ پھر کچھ میں نے محسوس کیا ہے چند سالوں سے رجحان پیدا ہو رہا ہے. مثلا ہمارے جہاں میں پڑھاتا ہوں عثمان امال کالج میں, وہاں پہ پہلے ایم اے کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ تعداد 2, 3, 4 ہوتی تھی, اب 25-30 تک ہو جاتی ہے. 25-30 اسٹوڈنٹ آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ باقی ڈسپلن ہو سکتا ہے, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو کوئی جملہ نہیں لکھنا آتا ہے, اس وقت افسوس ہوتا ہے. تو اس حوالے سے لیکن پھر بھی بہتری کی طرف ہی میرا خیال ہے اچھا سوچنا. لیکن مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ انگریزی میڈیم میں پڑھنے والے بچوں جو ہیں ان کے لیے اردو زبان اتنی ہی مشکل ہے جتنی ہمارے لیے انگریزی ہوا کرتی. بلکہ آپ حیران ہوں گی کہ یہ جو پیپر ہم مارک کرتے ہیں تو اب فیل کی پرسنٹیج بہت بڑھ گئی ہے نا. پہلے جو لوگ کہتے تھے نا بندہ اردو میں پاس ہو ہی جاتا ہے, اب ایسی بات نہیں. اب ہم نے اردو کا پرچہ کبھی تیار زندگی میں نہیں کیا تھا, کہ اس کے لیے پڑھا نہیں تھا. ایسا ہی ہے, اردو کا جس دن پرچہ ہوتا تھا اس میں چھٹی ہے. ایسا ہی ہے. تو آج ہمارے بچے جو میرے بچے جو ہیں وہ اردو کے وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں یہ پڑھنا چاہتا. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک نسل میں کتنا کچھ بدل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھے ہیں نا تو پھر بھی مطالعہ پاکستان اور اسلامیات ہمارے اردو میں ہوا کرتی تھی. ہاں جی. تو یہ جو 3 مضامین جو تھے اردو, اسلامیات اور مطالعہ پاکستان, اب ایسا نہیں ہے. اب اسلامیات اور مطالعہ پاکستان میں انگریزی میں ہو گیا. اور دوسرا ہمارے بزرگوں نے کوئی اتنی انگریزی بولی بھی نہیں تھی ہمارے ساتھ, ہم سے پنجابی میں بات کرتے تھے گھروں میں. ہم اگر پنجابی ہے, پٹھان ہے, سندھی ہے, تو مادری زبان بڑے فخر سے بولی جاتی تھی, اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی تھی. اور پھر ہم اپنی جو قومی زبان ہے اس کو بھی بڑے فخر کے ساتھ بولتے تھے. اور انگریزی جب میں پڑھا کرتی ہوں مجھے یاد ہے انگریزی کے پرچے والے دن ہمارے چکے چھوٹے ہوتے تھے. بلکہ اب انگریزی بھی نہیں آتی, بلکہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ نا, تو وہ ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی یا جھگڑا کیا تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاؤں گا. اچھا, آپ سے درخواست کروں گی میں کہ کچھ آپ بھی اور کچھ آپ بھی اپنی کتابوں میں سے ہمارے جو ویور ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے اٹھ رہے ہیں, پھر آپ سے ملاقات. خوش
खुशामदीद और सब बखैर जनाब। आज हम आपकी मुलाकात दो कलमकारों से करवा रहे हैं। दोनों ने मुख्तलिफ जो हिस्से हैं अदब के उनके ऊपर तबाज़नाई की है। जुल्फ़कार अली अहसन साहब जो कि मज़ाह निगार हैं और मज़ाह के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हसनैन नाज़िर साहब जो कि अदीब हैं, सफ़र निगार हैं, अफसाना निगार हैं, वो इस हवाले से आज हमारे साथ प्रोग्राम में। उर्दू सफ़रनामे में जिस निगारी का रुझान बड़ा ही जिसे कहते हैं ना सुलगता हुआ मौजू, इसलिए कि जब भी सफ़रनामा हम पढ़ते थे तो मुझे भी यही लगता था कि सफ़रनामे से ज़्यादा ना कुछ वहाँ की ख़वातीन का बयान ज़्यादा है। जी बिल्कुल। आपके सफ़रनामे में भी कुछ इस तरह की हमें तुर्क ख़वातीन के हुस्न जमाल के तस्करे देखने और सुनने को मिलेंगे? जी, मेरा सफ़रनामा पढ़ने के बाद दूसरे लोगों ने इस पर जब नकारे लिखे, खासतौर पर नसीम सहर साहब का भी नाम लेना चाहूँगा, एक अच्छे शायर हैं और नाक़िद हैं। उन्होंने कहा कि हम भी यही समझ रहे थे कि कोई ना कोई खातून आपकी राह होते खड़ी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मायूसी हुई, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसे सफ़रनामे को पढ़ने का फ़ायदा, इसमें कोई नीली आंखों सुनहरे बालों वाली हसीना आई नहीं। दरअसल मैंने ड्राइवर में बैठ के नहीं लिखा, तुर्की जाके लिखा है मैंने। सही। अच्छा, ये जो जिस निगारी का रुझान है, आपका क्या कंक्लूजन है? एमफिल का थीसिस भी था? एमफिल का थीसिस है मेरा। अच्छा, बहुत खूबसूरत, अगर आपने जानना है इसको तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में तमाम जो सफ़र निगार हैं उनकी जो तकरीबन तबाज़नाई है ना उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। जी, तो इस हवाले से ये है कि इसमें ये बताया गया है कि ये जो सफ़रनामा निगार हमारे यूरोप खास तौर पे जाते हैं तो किस नुक्ता नज़र से इन चीज़ों को देखते हैं और कैसे बयान करते हैं। ठीक। उसमें वो रंग भरने के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, खास तौर पे अब ज़्यादा लोग मुस्तनफ़र तारिक साहब इस हवाले से मशहूर है, बल्कि किसी ने लिखा भी है कि एक जगह कोई बंदा गया अदीब, तो वो बैठे हुए थे पार्क में, तो कहते हैं कि खातून मेरे साथ बैठ गई और साथ भी होने लगी। तो कहते हैं कि मैंने यही कहा कि तारिक साहब अगले साल आएंगे, मैं मुस्तनफ़र तारिक नहीं हूँ। इस हवाले से जो है इसमें कुछ सारे ऐसे नहीं है, तो लेकिन मोस्टली लोग जो है उनके यहाँ हमें एक रवैया नजर आता है। वो ऐसे नहीं है, वो कौन है? अच्छा, आप उनमें जो है वो नजरनामा के मुसन्निफ हैं महमूद निज़ामी, उनका बड़ा अच्छा सफ़रनामा है जिसमें ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। और भी शोरिश का एक सफ़रनामा है। सही। तो और इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे अदीब सहाफ़ी हम सब लोग उसको लेके खास साइकोलॉजिकल जो फिनोमेनन है ना मिज़ोगाइनिस्ट, कि खातून को हमेशा एक ही नज़र से देखना कि वो बस लुभाने के लिए ही है या फिर रिझाने के लिए ही है या दिल लगाने के लिए ही है या फ्लर्ट करने के लिए है। तो ये रवैया हमारे यहाँ जितना कॉमन हमारे मर्तबे में पाया जाता है उतना ही कॉमन हमारे अदब में भी और उतना ही कॉमन हमारे सहाफ़ती जो सारे मैदान है वहाँ पर भी और ज़िंदगी के हर मैदान में खातून के साथ पाया जाता है, जो बदकिस्मती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये रवैया साहब। एक बात और भी मैम आ गई इसमें, उसकी वजह ये है कि आजकल जो लोग भी चटखारेदार चीज़ें पढ़ना चाहते हैं और ये जो कमर्शलिज्म है ना वो भी इसमें आ गया है। तो जैसा लोग चाहते हैं तो लिखने वाले भी वैसा लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो चाहे मसालेदार चटखारेदार उसी को लिखा, जैसे खाने पसंद करते हैं वैसे ही इसी तरह की चीज़ें। इसे नहीं जाना उनके बारे में तो हमें पता चल गया कि वो उर्दू अदब के प्रोफेसर है। आपका लिखने लिखाने से कैसे ताल्लुक वास्ता बना? तो बस बचपन में जब स्कूल में थे हमारे ज़माने में नज़्म अदब की महफिल हुआ करती थी क्लास 5 से ही, ठीक है, उसमें मैं बड़ा जाया करता था। उस ज़माने में आवाज़ भी अच्छी थी शायद, अच्छा, ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम स्कूल के लिए स्कूल से दूसरे स्कूलों में जाया करते थे, तो वो अच्छा लगता था क्योंकि उस ज़माने में तो बंदी शुरू कर दी दरअसल। अच्छा, ठीक है ना, शेर वगैरह भी कहना शुरू कर दिया। सही। तो अच्छा लगा कुछ। फिर जब कॉलेज में आया तो वहाँ भी कुछ लिखने का सिलसिला हुआ, 2-4 चीज़ें मेरी छप गई। और ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा, खुशबू नाम की एक अदबी तंजीम थी 1997 में, 1997 में मैं कॉलेज में था, ग्रेजुएशन में था। तो उस ज़माने में मैंने एक अफसाना लिखा था मैंने ख़वातीन के मौज़ूआत के ऊपर कि उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही है हमारे माशरे में। ख़ास तौर पर उस ज़माने में कोई एक सियासतदान थे, नाम लेना चाहूँगा, तो उनके बेटे के हवाले से स्कैंडल सामने आया था कि उन्होंने अपनी बीवी का चेहरा जला दिया, तेज़ाब फेंक दिया था और इस तरह तस्वीर भी आई थी किसी ज़माने में मैगज़ीन में मैंने देखी थी वो। तो मैंने उसके ऊपर एक अफसाना लिखा था थैंक्स गॉड के नाम से। क्योंकि एक बात थी कि इसमें मौजूद भी है मेरी किताब पर उड़ान के अंदर। मेरी दोस्त थी अतालवी खातून थी, वो सेकंड एम्बेसडर की बीवी थी वो, तो इंडिया में आना जाना मेरा होता था। तो उसने जो है वो एक मैगज़ीन देखा और उसने मुझे कहा जी कि
thanks God I'm not a Pakistani woman, उसको पढ़ने के बाद yes, तो उसको देख के फिर मैंने उनको कहा देखिए लेडी ऐसा नहीं है कि हम साउथ में वैसे लोग हैं, हम खवातीन की इज्जत करना जानते हैं, हमारे भी कुछ अखबार है, हमारे तहजीब है, तमद्दुन है, इस्लाम है, फला फला। लेकिन उसने कहा कि देखिए मिस्टर हसन यू डोंट नो, ठीक है, कि हमारे पास बहुत सी खवातीन का एक्सेस ही नहीं मीडिया तक, जी बिल्कुल, उनके साथ क्या हो रहा है, तो उसने फैक्ट फिगर्स बताए, इस साल इतनी खवातीन जो है वो चूल्हे जलने से जो है वो मर गई, इतनी खवातीन जो है वो तेजाब से, तो उसमें फैक्ट फिगर के साथ मुझे बताया। और ये तो वो है जो बेचारी किसी तरह से रिपोर्ट हो जाती है, वो चुपचाप गुमनामी में डूब जाती है, उनका तो रोजाना जीते मरते में जितनी खवातीन यहाँ जिंदगी गुजारती हैं बताती हैं, उनका तो आज तक किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, तस्करा ही नहीं। बिल्कुल ये अल्फाज से इसी लेडी के जो आपके हैं अमीदा मार्टिन इसका नाम था, जाने आप किस मुल्क में हो, तो उसने कहा सॉरी मिस्टर हसन आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट योर आइडिया बट थैंक्स गॉड आई एम नॉट अ पाकिस्तानी वुमन, ठीक है। और वो उन्होंने कहा तो उसने मुझे बड़ी जहद दी, तो वो अफसाना मैंने लिखा इसी जो गुफ्तगू और जो चीज़ें हमारे यहाँ होती रही खवातीन के ऊपर, तो वो छपा, उससे बड़ी मस्बत और मनफी तनकीद हुई जिससे मुझे काफ़ी कुछ लग गया। बिल्कुल। अच्छा हसन नाज़िर साहब, आपने उर्दू की पूरी एक हिस्ट्री, तारीख, सफ़र भी लिखा है, उर्दू है जिसका नाम, और आपको पता है मतलब टेलीविजन पे जो मैंने जिंदगी में पहला जो प्रोग्राम किया था ऑन मोहम्मद रिजवी साहब मरहूम के साथ, मैंने इस प्रोग्राम का एंकर किया था जिसमें इसी तरह से पूरी उर्दू की तारीख हमने जो है वो बताई थी लोगों को। उस वक्त ऐसे इल्मी अदबी प्रोग्राम हुआ करते थे जो कि अब बिल्कुल ही मफकूद, अब तो कोई तस्करा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी किताब मैं आपकी देख रही थी, इसमें आपने पूरी उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखी हुई है। थैंक यू वेरी मच। कम से कम किताबों के फॉर्म में आने से ये चीज़ें महफूज हो जाती हैं। जी जी, ये दरअसल इस वक्त ख्याल हुआ इस किताब को लिखने में उस वक्त जब मैं आज से 10-12 बरस पहले फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मैं उस ज़माने में, तो मुझे महसूस हुआ कि वो MBA के स्टूडेंट थे लेकिन उन्हें उर्दू पढ़नी थी, तो उन लोगों को उन बच्चों को पता ही नहीं था कि उर्दू क्या है क्या नहीं है। तो मैंने यही सोचा जो मार्केट में गया तो बड़ी ज़ख़ीम किताबें, बड़ी मोटी सी किताबें जो मौजूद है उर्दू ज़बान के हवाले से, असलाफ़ सुखन के हवाले से कि उर्दू बनी कैसे, पैदा किया कैसे हुई, और ज़बान में इर्तिकाई मनाज़िल कैसे कैसे कब तय किए, तब मैंने उनकी ज़रूरियात को देख कर फिर मैंने ये किताब लिखी थी, जो भी सिलेबस का हिस्सा रही फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। चलिए बहुत खूब। अच्छा मैं चाहूँगी थोड़ा सा कुछ आप अपने अफसाने में से या अपने सफ़रनामे में से जो भी सुनाना चाहें सामने जी जरूर सर की जगह से। जी बिल्कुल सर, मैं जब जहाज से नीचे उतरने लगा इस्तांबुल, ठीक है, तो इस्तांबुल का जो पहला नज़ारा था उसने मुझको क्या फीलिंग की, मैं एक सैर ले रहा था। सिर्फ एक बार बता दें, तुर्क ख़वातीन इतनी हसीन है जितनी हमें तुर्की ड्रामों में नजर आती है? नहीं, उससे ज़्यादा हसीन है, उससे ज़्यादा हसीन है। आपको पता है जब से तुर्की ड्रामे पाकिस्तान में दिखाए गए हैं टूरिज्म कितना बढ़ गया है तुर्की का, बिल्कुल पाकिस्तान से तुर्की जाने वाले, तो इससे अंदाजा होता है कि सफ़रनामों में खूबसूरत खातून का तस्करा कितना ज़रूरी है। लेकिन या कुछ स्पेसिफाइड कोई एक खातून का तस्करा नहीं मिलेगा किसी भी जगह। तो इस्तांबुल के बारे में खासतौर पर इससे पहले बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, फिर मैं कुछ पढ़ूंगा कि मैं वहाँ भी गया और लोगों से भी पूछा है, और मेरा खुद इतना ये आइडिया जो हमने पढ़ा है कि अगर पूरी दुनिया अगर एक मुल्क बन जाए कहीं, अगर ऐसा हो जाए तो सारी अगर कौमियतें इकट्ठी हो जाए कि किसी एक शहर को बताइए कि जो दारुलहुकूमत हो, तो यकीन मानिए दारुलहुकूमत जो इस्तांबुल होगा। सही आधा हिस्सा इसका दिल्ली मिलान की वजह से कह रहे हैं, जान की वजह से कह रहे हैं, या फिर ये इस कदर खूबसूरत है, इस कदर हसीन है, अच्छा ठीक है, कि मैं थोड़ा सा बयान करूँगा अंदाजा हो जाएगा। जहाज की परवाज नीची होती चली गई और अब हमारी नज़रों के सामने दुनिया का हसीन मंजर फैलता चला गया। एक तरफ बहीर मरमरा का नीलगू पानी खामोशी से सोया हुआ था, जिसके किनारे खुशनुमा घर और कॉटेज बने हुए थे। लबे साहिल बने हुए कॉटेज लकड़ी के थे और इनके गिरदागिर्द उगे हुए नीले पीले सुर्ख सफ़ेद रंग के फूल एक दूसरे के साथ हटकेलियाँ करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ आबनाए बासफोरस में बहरी जिंदगी जोरों पर थी। हर रंग की छोटी बड़ी कश्तियाँ, तिजारती जहाज, बहरी बेड़े और माहीगीरों की लांचें एक दूसरे से गत्थम गुत्था नजर आ रही थी। चंद एक जहाज़ों की चिमनियों से धुएं के भगोने उड़ थे। चंद एक मछेरों की छोटी कश्तियाँ भी इसी आबी ट्रैफिक में हचकोले खा रही थी। सात पहाड़ियों का शहर इस्तांबुल सरसब्ज दामन ढलाए एक आलम का इस्तेमाल करने को तैयार खड़ा था।
अपनी इन्हीं पहाड़ियों के सब्ज़ाजार और मुख्तलिफ अनवाह दरख्त बहीर मरमरा की तरफ को झुके हुए ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे जापान के किसी जजीरे के बाशिंदे सब्ज रंग के लिबास ओढ़े सियाहों के इस्तकबाल के लिए घुटनों तक रवायती अंदाज से झुके हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत कमाल। इसमें देखिए ना अल्फाज का चुनाव आपका कितना है, बहुत मुश्किल अल्फाज भी नहीं है। असल में इस तरह कि लोग कहते हैं फलां शायद बहुत पढ़ा लिखा है, कि लिखने के लिए जरूरी है कि आप पढ़ देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, पढ़ने से जो है वो लिखना आता है और इसी से आप जो है अल्फाज बनते हैं। चलो आपसे भी कुछ आपकी मज़ाह निगारी भी चख लें हम। जी बिल्कुल, ये एक छोटा सा प्यारा जी बहुत मुख्तसर सा। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, ये शादी के हवाले से एक आर्टिकल लिखा था, पहली मेरी जो बुक है अटकेलियां उसमें सही, एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, हालांकि अगर जज्बाती होकर सोचा जाए तो शादी है ही बच्चों का खेल। एक तजर्बाकार सियाने के बकौल कामयाब अज़दवाजी जिंदगी का राज इसमें है कि अपने बटुए का मुंह खुला और अपना मुंह बंद रखो। हस्तियों के फाख्ता की गलतियां जब सामने आती हैं तो इंसान को खामखा शर्मिंदगी महसूस होती है। शादी से पहले हर लड़की खूबसूरत नजर आती है और शादी के बाद मालूम नहीं क्यों मर्दों की आंखों में मोतिया उतर आता है कि किसी भी लड़की को देखने से पहले कान अखियों से बीवी की तरफ देखना पड़ता है। अगर ऐसे मौके ना आए तो शायद शौहर हजरात कभी बीवी की तरफ देखने की जहमत गुजारा न करें। औरत वो मखलूक है जो हमारी पसली से पैदा होकर हमारी हड्डी पसली एक करने की सलाहियत रखती है। हजरत आदम ने शजरे ममनुआ को छू कर जो गलती की वो तो है ही, मगर अपनी पसली से उस आतिशी मखलूक को जन्म देकर हम सबको मखमसे में डाल दिया है कि अगर इस शजरे ममनुआ को छुआ तो नतीजा वही ढाक के 3 बात यानी दर्जन भर बच्चे होगा, और अगर ना छुआ तो लोग हमारी जवानी और मर्दानगी पर शक करेंगे। इसे कहते हैं हैंगिंग बिटवीन द टू फायर्स। ग्रेट। सो ये आपने हमारे आज के दोनों अदीब जो है मुख्तसर सा वक्त रहा जिसमें बहुत ज़्यादा तफसील से बात नहीं हो सकी, लेकिन बुलाने का मतलब ये है कि आपका काबिश और बहुत सारे अफसाना निगार जिसमें कि खास तौर पर काबिश उर्दू है जिसका नाम, ये एक ऐसी किताब है जो हम सबके पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमें कम से कम अपनी हिस्ट्री बैकग्राउंड चीज़ों का पता तो हो कि ज़ुबान हमारी जो है किन किन मराहिल से फिर यहाँ तक पहुँची। बहुत शुक्रिया हसनैन नाज़िर साहब आपका, बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार साहब आपका, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, कैसे हैं आप? इश्तियाक साहब अस्सलाम वालेकुम। कॉल मेरा ख्याल ड्रॉप हो चुकी है, हम ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हकीम रिजवान हफीज मलिक साहब और तलत हमारे साथ होंगे।